The Himalayas, mighty mountains. Himalayas nourished different culture, wildlife, flora, and fauna for years. Even after centuries of exploration, these mountains are still home to many mysteries and unexplained phenomena. Each river valley and every slope of these mountains have something new to share every time you go deeper or higher in the mountains. The inhabitants of Himalayas will always be eager to share their experience, their life, their livelihood, their interaction with wildlife, their culture and beauty of the mighty mountains in different seasons. Although no part of the planet has just happiness and beauty, but the natives have to face fury of the nature at these places as well. Himalayas are no exception. With the fairy tale stories, it also have sorrow and pain to share. Himalayas witnessed tragedies which changed lives and thinking of the innocent inhabitants forever. Right from Uttarkashi and Nepal earthquakes to cloudbursts at Ladakh Joglamsar and Himachal floods, which not only took uncounted lives of people and made lakhs of people homeless, but also changed their thinking and psyche and left them in trauma for rest of their life. Devastating floods of Kedarnath in 2013 not only took uncounted number of lives but left many survivors mentally disturbed. Many of them are still in trauma, and even after 10 years, today in 2023, they still are not normal. Watching news clips of these tragedies or reading about these in the newspapers never gives you a clear picture of the pain and sorrow of the people who went through the tragedy. While camping on the banks of Jalandhari River in October 2013, last month, on Kyar Koti trek, I had a long discussion with my trek guide, Mr. Tulraj Singh, who is from Nepal but living in Uttarakhand around Gangotri and Kedarnath area since childhood. So many Nepalese live there. Mr. Tulraj and many Nepali natives earn their livelihood during Char Dham Yatra in Uttarakhand by running small businesses or providing services to pilgrimage. Mr. Tulraj was in middle of the Kedarnath tragedy in June 2013 and somehow survived it. While cooking for us during the recent trip or trek at night during the night camping, he got emotional and shared his horrific memories and those moments. अच्छा, तुलराज जी, आप एक मिनट आइएगा. आपने देखिए, आप एक जो हम दिल्ली बम्बई में बैठ के किसी ट्रेजेडी को ये सोच लेते हैं, अच्छा हाँ ठीक है फ्लड आया है, वो एक न्यूज़ होती है हम लोगों के लिए. केदारनाथ में जब फ्लड आई थी तो कितने हज़ारों लोग मरे हैं, कितने लोगों के घर उजड़े हैं, कितने पेरेंट्स के बच्चे चले गए हैं, और वो जो एक ट्रेजेडी क्लैमिटी था उसको आपने बीच में वहाँ पर अभी कोई गिनती है कि वहाँ पे जब ऊपर जो बिल्डिंगें बन गई हैं, केदारनाथ को जो रिवैम्प किया है, उसके नीचे कितने लोग की लाश पड़ी हैं, कितने लोग? इतने सर कि अब 6 दिन तक बारिश हुई है तो लोग सब नीचे गौरी कुंड बंद कर दिया गया, तो सारे इतने वो नहीं हो पाएगी, इतने लोग हैं अंदाज़ा नहीं है, पर ज़्यादा से 1.5-2 लाख से ऊपर ही ऊपर हो सकता है. ओके. और वो सारी लाशें अभी भी नीचे हैं, मतलब कुछ निकल पाए? हाँ, कुछ निकल पाए, कुछ नहीं निकल पाए. निकल गए, अब कुछ चट्टानों के नीचे दबे, कुछ अब पूरा केदारनाथ तो अभी स्विट्जरलैंड बन रखा है, तो उसके नीचे तो अब पूरा इतनी गाड़ियाँ मशीन लग के इतना वो फिलिंग हो गई है उसके नीचे, तो कहाँ है कुछ अता पता नहीं है. लेकिन एक्चुअली ये है कि कोई भी अपनी डेड बॉडी किसी की भी घर नहीं पहुँच पाई उस टाइम. कोई कंडीशन ही नहीं थी कि पहुँच जाए, एक बंदे की भी नहीं जा पाई उस टाइम. 6-7 दिन तक तो वेदर ही ऐसा था कि कोई जा ही नहीं पाया. और उसमें जो मर गए, फिर ऊपर से और जो फ्लड का बोल्डर्स गाद जो आई उसके नीचे दबते गए, और लोग थे उनकी डेथ हुई, कुछ बचे, फिर वो अगले दिन मर गए, वो उनके नीचे दबते गए, वो शायद कभी निकल ही नहीं पाएंगे. नहीं ऐसा और सब जो है अब इसके बाद में कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब जो था उस टाइम इतना
रेस्क्यू करने के लिए भी संभव नहीं था, इतनी संभावना नहीं हुई। तो अब जो है, अब तो फिर दोबारा नया बन चुका है सब। आप उस टाइम में कहाँ थे कि मैं रामबाड़ा में था। रामबाड़ा में थे। वो तो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटेड फ्लड वहीं पे आई थी। जी सर। रामबाड़ा जो पुराना था वो तो चला ही गया, वो तो शहर उसका तो नामो निशान उसका नहीं। नामो निशान नहीं है। अब पता भी नहीं लगा सकता कोई कि इसमें मार्केट थी इतनी बड़ी। हाँ, कुछ नहीं है सर। वो रोड भी नहीं है, रोड भी अलग बनाया है, रोड भी अलग है। पूरा रामबाड़ा शहर ही दोबारा बसा जी है। सर। ओके, ये एक मूवी बनी है जो केदारनाथ, उसमें तो बहुत ही वो हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी उस तरह का बना दिया, उसमें वो क्लैमिटी का एक्चुअल जो पेन है ना वो नहीं दिखाई दिया। किस मूवी की बात कर सर? ये सुशांत सिंह राजपूत हाँ ने हाँ बनाया हाँ, वो जो- वाली, हाँ वो तो एक पंडित के ऊपर बनाया गया है। पंडित और एक मुसलमान लड़के के हाँ ऊपर हाँ स्टोरी हाँ, है। उसको उसमें केदारनाथ की उसमें जो स्टोरी है, हाँ उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं है जो वहाँ हुआ था। हाँ, वो उसकी क्लैरिटी story नहीं नहीं है। हाँ, तो लोग जो है, अब देखिए जो इतना बड़ा देश है, मतलब ये तो एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी थी। बाहर जो कई बार ये मूवीज जो होती हैं इसको हम लोग सच मान लेते हैं कि ये ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन वो तो एक एंटरटेनमेंट है, उसमें हिंदू मुस्लिम कर दिया, लव स्टोरी ऐड कर दिया, लेकिन वो जो क्लैमिटी हुई थी, जो लोग किस तरह से मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं, लोगों के घर उजड़े हैं, वो सिर्फ रामबाड़ा में नहीं, आगे केदारनाथ में भी हैं, बीच में भी जो कैंप है आपका कौन सा है, इसमें ये गौरीकुंड है, गौरी सोनप्रयाग है, हाँ सीतापुर हो गया। हाँ, ये सोनप्रयाग है इधर। तो यहाँ कितने लाखों लोग मरे हैं, वो कोई स्टोरी डॉक्यूमेंट्री आज तक कोई ऐसी बनी नहीं नहीं है है सर, जिसमें कोई वो नहीं। पेन दिखा सकें। नहीं। एंड एक्चुअली होता क्या है कि ये जो क्लैमिटीज या इस तरह की चीज़ें हैं, उसको रियलिटी में कोई दिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो हो रहा होता है वहाँ तो कोई ना फोटोग्राफर होता है ना वीडियोग्राफर होता है, हर आदमी को अपनी जान बचाने की पड़ी होती है, और वो फिर किसी ने कोई मूवी बना दी, वही हिस्ट्री बन जाती है कि ऐसे ही हुआ होगा। एक्चुअली वो उसके 1000 गुना ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी थी। एक्चुअली हुआ क्या, आया कैसे हुआ, ये एक्चुअली किसी को नहीं पता है। हाँ 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 क्योंकि ये मेन चीज़ ऐसा हुआ है कि ये ऊपर ताल है, ताल है केदारनाथ के ऊपर, जो उसके ऊपर जो लेक है। टॉप है, उसके टॉप से ग्लेशियर फटा, हाँ। तो वो आगे ताल में गिरा, हाँ तो ताल का पानी सीधा बाहर, हाँ। तो उसकी वजह से ये बाढ़ आया है। हाँ हाँ तो हाँ लोगों को बोलना बादल फटा है, ये कुछ हुआ है, ऐसा तो actually कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि अभी बाद में भी गए तो देखिए क्या सब पता चल रहा है। तो ये जो ऊपर ग्लेशियर फटा तो ताल है बहुत बड़ा, ताल के अंदर जब ग्लेशियर आ गया, वो पूरा टूट गया, तो ताल का पानी सीधा बाहर, तो इतनी भावुक तरीके से आएगी, लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला है। तो आप अचानक कोई बचे अपनी किस्मत से। अब जिसको ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं, जैसे मान लीजिए कि आप, मेरे अंदर इतनी से वो है कि मैं जैसे इतने यहाँ तक नज़दीक आ सकता है, तो मैं यहाँ से पार वहाँ तक 1 मिनट में भाग सकता हूँ। तो वैसे वैसे बंदे बैठे। उसके बाद में जैसे अगर नदी से थोड़ा बैक साइड थे वो बचे, वो भी कैसे बचे, 6 दिन तक एकदम बारिश हुई, कोई सुविधा नहीं है बैठने की, इतनी ठंड है, लोग उड़ार नहीं है, कुछ नहीं। कुछ लोग तो ज़्यादातर तो बेरहमी से इसीलिए मरे, ठंड की वजह से, ठंड की वजह बारिश की वजह से मरे। से। आप उस दिन रामबाड़ा में क्या, जब ये हुआ तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम में? हमारा 2-4 बंदे थे, हम पार्टनरी में होटल था हमारा। अच्छा। पार्टनरी में होटल था, तो हमारे 2-4 खच्चर भी थे। एक्चुअली ये हुआ कि बाजार से मेन थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे, मेन जहाँ से अभी उखड़ा है, वहाँ पे मैं ऐसा था कि खच्चर के लिए घास डालने गए थे। हम 2 भाई थे हम। तो हमारी किस्मत ऐसी अच्छी थी कि हम घास डालने के लिए वहाँ पहुँचे, तो उतने में ही आ गए। तो हमारे साथ के लोग एक भी नहीं रहे, अच्छा न खच्चर रही हमारी बात में। तो हम ऐसा कि किसी भी हालत में जंगल में टप गए। अच्छा जंगल के रास्ते निकले तो हम तीसरे दिन केदारनाथ टप पाए। अच्छा। केदारनाथ टपने के बाद में उसमें हमें हेली के थ्रू सोनप्रयाग उतारा गया। सोनप्रयाग उतारे। और आप वो जो बता रहे थे बगैर चप्पल के आप लोग भागे हैं, और उसके बाद में बगैर चप्पल के ही आए हम, हेली में भी हमें बगैर चप्पल के आए। अच्छा। बगैर चप्पल के केदारनाथ। उसके बाद में हमारे को रूट नहीं मिला है, तो सेवा नहीं थी, चोट लगी हुई थी, हाँ। मेडिसिन भी इतने टाइम पे नहीं तो हो पाई थी। रामबाड़ा से फिर आप ऊपर की तरफ भागे? तभी बच पाए सर, अगर ऊपर नहीं भाग पाते अच्छा, तो नीचे नहीं आए आप? नहीं आए, तो नीचे नहीं आए, ऊपर को भागे। ऊपर भागे। जी। अच्छा, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ जा रहे थे। नहीं, उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी। उस टाइम ऐसा नहीं था कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हमारे को कोई कंसिडर नहीं था। हमने चलना है, कहीं भी निकलना है, हाँ तो केदारनाथ से बाहर निकलना है, हाँ। ये था हमारे उसमें। हाँ। तो उस टाइम ये नहीं सोचा जाए था कि क्या हम कहाँ निकलेंगे, हमें ये रूट है, ये रूट का कोई मतलब ही नहीं है।
रूट सब चले गए थे, चले गए, कोई रास्ता, रोड, ट्रेल सब कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। तो जहाँ जिसको जो डायरेक्शन में मिला वो चला गया। जिसको जहाँ निकलना मतलब टारगेट है कि इधर निकलना है, पर जहाँ कहाँ से रहा है उसको पता भी नहीं है। तो आप तो खैर वहाँ के क्योंकि रहते थे, आपको मालूम था किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना है। जो पिलग्रिमेज थे यात्री, इतना नॉलेज नहीं था उनको कि पता हमने नहीं कहाँ जाके क्या करना। उस वजह से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, उनकी ज़्यादा मौत हुई है। सबसे ज़्यादा इसीलिए। तो अब वो इतने सालों बाद भी आपके दिमाग में रहता है वो? बिल्कुल सर, रहता वो है। नज़ारा अभी तक है। हाँ। बिल्कुल है। अभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदगी में बोलते हैं ना लोग कि ये सब कुछ है, कुछ नहीं है। हाँ। जितना इंसान है, की सोच बदल जाती है। सोच बदल जाती है, कुछ नहीं है। हाँ। तो आदमी कि- को इस चीज़ का वो नहीं रहता है कि जैसे बोलते हैं ना लोग 10 साल 4 महीने तक घर आने के बाद में 4 महीने तक मैं आपको मेंटली स्ट्रेस रहा, मैं किसी से बात नहीं करता था, नींद नहीं आती थी मुझे। जैसे आपको 4 महीने तक नींद नहीं आती थी, नींद मतलब नहीं बात आती। नहीं करते थे। मैं किसी से बात नहीं करता, तो सोच में चले गए मैं हुआ क्या है। तो उसके बाद में मुझे नेपाल ले गया, तो नेपाल में गाँव में अपने जहाँ वो था वहाँ रहे, तो 2-4 महीने ऐसे घूम मिल रहा। तब जाके मेरे को लगा कि ना ना मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है ऐसे। जिस दिन टाइम आएगा तभी जाना पड़ेगा। तब जाके आजकल फ्री माइंड हुआ, अब काम कर सकता। मतलब उस ट्रॉमा से 4 महीने बाद निकले हैं आप? बिल्कुल सर, 4 महीने बाद मैं तो निकल गया। 4 महीने बाद कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बचे भी है, कई लोग मैंने देखा भी है। और कोई लोगों को किसी काम के लिए मेंटल है, 2-3 लड़के शायद वहीं के उधर श्रीनगर के साइड। अच्छा। वो श्रीनगर मार्केट में ऐसे गायों के साथ खाना खाते, अच्छा। कबाड़ में से खाना खाते। तो अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मतलब पागल हो गए हैं। क्योंकि पिछली बार गए थे तो मैंने उनको वहाँ पे देखा हुआ था, हाँ। पहचानता हूँ मैं उनको। हाँ। तो देखा मैंने ना श्रीनगर में? जी। अच्छा। 2-3 लड़के ऐसे बिल्कुल यंग लड़के मेरे उम्र के ऐसे। तो ये जो क्लेमिटी ट्रेजेडी है, ये देखो कितने साल तक लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। अब उनकी तो बेचारों की ज़िंदगी खराब हो गई है ना, होगी सर, उनका मेंटलेस हो गया। मेंटल हो गए हैं। अब मुझे ये चीज़ भी लास्ट मरते दम तक भी याद रहेगी कि मुझे मैं एक बार ऐसा हुआ था वहाँ पे। ये चीज़ें नेचर से आगे कुछ नहीं नेचर से है। आगे नेचर को हम लोग कभी चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। Yes. बोलते हैं ना लोग कि धन संपत्ति ये चीज़ से कंपेयर करते हैं, हाँ। इसलिए कंपेयर आज है कल नहीं है। चलिए तुलराज जी, आप इस ट्रेजेडी से ना उभरें। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप एक प्रत्यक्षदर्शी, हिंदी में बोलते हैं, वो हैं केदारनाथ ट्रेजेडी के। वहाँ की पूरी कहानी मुझे पता है कि ये कौन सा क्या होता है, कौन सा क्या होता है, वहाँ पे कितने लोग मरे गए, कैसा हुआ है। पंडित में से आपको 81 पंडित में से एक पंडित बचा उसमें। 81 में से एक पंडित बचा है? 80 के 80 वही। 80 चले गए। नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेचर से ऊपर अपने आप को नहीं समझना चाहिए। जो एवरेस्ट वाली ट्रेजेडी हुई थी उसमें भी यही था कि हम लोग ये सोचने लग गए थे कि अब तो थर्मो जैकेट्स आ गई हैं, फाइबर ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वी आर सेफ। वो जो रॉब हॉल वाला ट्रेजेडी था एवरेस्ट में, और वो एक रात में 11 लोग मर गए थे, सब कुछ होते हुए भी। तो हम लोगों को कभी नेचर को चैलेंज नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा सेफ रखना चाहिए, नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ क्रक्स ऑफ द मैटर, वो करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद तुलराज जी। They are simple people, and numbers they quoted may not be correct. Not lakhs but thousands must have lost lives in Kedarnath tragedy. But every human life is precious. I was amazed to know the number of people visiting Char Dhams, but we need to pay equal respect to our ecosystem as our deities Yamunotri, Gangotri, Badrinath and Kedarnath. These all the dhams are on the high reaches of Himalayas, and these zones are eco-sensitive. Swelling crowd at Char Dhams, overcrowded buses and hotels, overuse of fossil fuel for cooking and transportation of lakhs of people every day is badly affecting the sensitive ecosystem of these Himalayas. Glaciers in Gomukh and high reaches of Kedar Valley are retreating at the rate of 20 meters every year, which is astonishing and alarming. Are we waiting for another tragedy to control influx of visitors and haphazard construction activities in the Himalayas? Hope we are not. We are,
at an altitude of 3,400 meters and it's getting chilly. Let's get into the tent. We'll meet on another side of the ridge next time to know some more anecdotes from our mysterious Himalayas. Jai Hind.